वन एडवांटेज हाँ तोड़ू हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल। यस चलो बच्चा, today's topic is biodiversity and conservation. ठीक है ना। We already know कि what exactly is biodiversity. पहली बात तो biodiversity है क्या? This term is made of two, bio and then diversity. Diversity implies the variations or the different kinds of organisms that you see around yourself. ठीक है, तो उनमें जो differences है, उनमें जो speciality है, that is basically what is diversity. ठीक है, so all the different kinds of organisms, let that be flora or fauna, मतलब plants and animals, उन सबको हम क्या बोलते हैं? Diversity. And when you're talking of biological diversity, implies of organisms. ठीक है, let that be microbes like bacteria हो गया, fungi हो गई, protists हो गए, plants हो गए, animals हो गए, all of them together is referred to as biodiversity. ठीक है, अच्छा फिर biodiversity में हम लोग इतना what is the important thing that we discuss here? The important thing that we discuss in biodiversity is ये biodiversity किन factors के ऊपर depend करती है? Especially like habitat, longitude, latitude, altitude, temperature. इनकी वजह से, इनकी differences से what are the various changes that happen in these organisms, मतलब adaptations. तो आप देखेंगे कि ecological biodiversity, ठीक है, then आप देखेंगे genetic biodiversity, you see in terms of the habitats, you see in terms of evolutionary adaptations, ये सब चीजें interlinked है. Fine, ठीक है, समझ में आया? Now let us look into the details of it. Look at now. बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में? वी आर लुकिंग एट पहला लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जब आप बोलते हैं कि कौन सी लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन सी लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है. वन, इट इज एट व्हाट लेवल? जेनेटिक लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे है, केमिकल लेवल पे है, किस लेवल पे है? ठीक है. Then what are the various number of species and what are the different kinds of species present on Earth? ये biodiversity की कोई एक पैटर्न है क्या? Does it have any kind of pattern in it? ठीक है. Then what are the major causes of loss of biodiversity? मतलब ये biodiversity जो भगवान की देन है, it's a gift given to us by God, nature. इसकी loss कैसे हो रही है? Why it is degrading? How is it degrading? And what are the measures that we can take in order to protect or conserve it? जो लास्ट पार्ट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. समझ में आ रहा है बच्चा? सो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ जब भी आप पढ़ाई करते हैं, when you read this chapter or discuss this chapter, you need to emphasize upon these 5 points: levels of biodiversity, number of species, patterns, loss and conservation. ठीक है, इन सबको मिला लो, ये चैप्टर खत्म. So whenever you read, you segregate the topics into small ones and then you emphasize upon it. तो आपको आराम से समझ में आएगा, याद भी रहेगा and you can answer the questions also. ठीक है, चलो बच्चा, get ready then. Let's launch. Okay. देखो ध्यान से. Biodiversity is the diversity of biological organization ranging from cellular, ठीक है, macromolecules to biomes. तो जब आप बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो biodiversity basically ranges from macromolecules, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए, ये सब इनको मिलाया तो बन गया हम लोग का सेल.
सेल से आया टिश्यू, टिश्यू से आई ऑर्गन, ऑर्गन से आया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऊपर जाएंगे तो आती है ऑर्गेनिज्म। ना यहां तक ये सेम है इन द बायोलॉजिकल हायरार्की एज वेल एज इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है, ये कॉमन है। अब ऑर्गेनिज्म से ये चीज आगे बढ़ी, ठीक है, कैसे आगे बढ़ती है देखो, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑनवर्ड्स, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑनवर्ड्स, इसे मैं दूसरे कलर में डालता हूं, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑनवर्ड्स इसको ऐसे डालते हैं, ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके बाद स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम, फिर बायोस्फीयर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ऑल वेरिएशंस आप देख रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है ना। एडवर्ड विल्सन वाज द पर्सन who actually gave this term biodiversity and also helped in popularizing it. ये जो बंदा दिख रहा है आपको, he is the person who actually gave this concept, ठीक है। चलो now वेरियस लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी, एज यू कैन सी कि बायोडाइवर्सिटी कितनी लेवल्स की हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले द फर्स्ट वन हियर इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक लेवल पे, दैट इज आरएनए, डीएनए, प्राइमरीली डीएनए, ठीक है। एज वी ऑल नो कि डीएनए इज द बेसिस, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी एंटायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, योर बिहेवियर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, किस पे, डीएनए पे। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है या जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली विल हैव ऑल द डिफरेंसेस, फाइन। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, फाइन, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था बायोलॉजिकल हायरार्की, इफ यू रिमेंबर नो थिंग, तो आपने देखा कि ऊपर से दैट इज मैक्रोमोलिकुलर लेवल रू अमेथर एसिलिकोटिक ऑर्गेनिज्म बकुबू, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म वी स्टार्टेड विद द स्पीसीज, तो till the organism that is basically genetic, ठीक है भाई। from the species or a collection of organisms is with closely related features and reproductive compatible, so what are importance of species का कोई बात, species are a group of organisms with common features or similar features and are reproductively compatible, present in a habitat at a given point of time. आओ तेरे को सुनो, group of organisms, common characters, reproductively compatible means जदि male and female will copulate, they would result in the production of a fertile offspring. ताहले हमें कहबा reproductive compatibility, ठीक है। in a particular habitat, गोटे geographical area occupy करथुबे at a particular point of time या durations, ठीक होची, that is what is a species, fine, okay। and आंको भितरे जो चेंजेस गुड़िक दिसियो, फॉर एग्जांपल स्पीसीज डाइवर्सिटी में ध्यान दो, से वी से कैनिस फैमिलियरिस, दैट इज बेसिकली डॉग्स। ना अगर आप डॉग्स देखो तो एक ही स्पीसीज है भाई, ठीक है ना। इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल फाइंड various kinds of dogs, the labradors are there, the German shepherds are there,
the no, dash hounds are there, mastiffs are there, bulldogs, pit bulls, ठीक है, all these are there. तो ये आपकी species में ही diversity है. Similar goes for cats, similar goes for आपकी cows, etc. Right? The next thing that comes into picture is ecological biodiversity. ये सबसे highest form of diversity at the highest level. So whenever you find diversity at a macro scale or a large scale, तो उसे आप ecological biodiversity बोलते हैं. Means it is at the ecological level, मतलब ecosystem level पे. जो level देखा था हमने, प्रथमे species असला, population असला, community असला, then ecology असला, even ecosystem असला. तो ecosystem level रे यदि biodiversity आसुची, तब उसे हम लोग ecological biodiversity रेफर करते हैं. ठीक हो जी? I hope ये clear हो गया आपका. Yes, are you all done with it? सबको समझ में आ गया ना बच्चा? Yes, yes. चलो बढ़िया. ओके. उसके बाद देखते हैं. Now, as we strictly remain in the guidelines of the NCERT, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. Levels of biodiversity पहले आ गया genetic diversity. Genetic biodiversity में the example which is there in your textbook refers to raw Wolffia vomitoria. Raw Wolffia vomitoria. शाबाश. नसरीन जी, welcome, good morning. सब खैर? Everything okay? सही है बच्चा. Great. Okay. ठीक है. Now, thank you. वैसे ही अच्छे रहो. I'm also good. Okay. And I just pray कि सब लोग खैरियत से रहे, खुश रहे, आबाद रहे. Okay. देखो. Now, this is raw Wolffia vomitoria. Raw Wolffia vomitoria. Now, ये एक Himalayan species है. It is mostly observed in the Himalayan belt. ठीक है? At the base of the Himalayan mountains. Fine. देखो. Shows genetic variations in potency and concentration. मतलब इसकी बहुत सारी varieties तो नहीं है, सब देखने में समान है, लेकिन different आपकी जो species है इनकी या फिर different same category of raw Wolffia अलग अलग जगह पे जो है उनकी अलग अलग potency है. किसकी? The alkaloid which is present in them, that is reserpine. ये जो reserpine है ये अलग अलग varieties में अलग अलग concentration में and अलग अलग strengths में मिलती है. ठीक है? Now in some varieties of this उसमें थोड़ा कम होगा and in some other varieties it will be slightly higher. So therefore you'll find that the reserpine varies in its strength and concentration in these plants. Fine. So this is on the basis of the genetic makeup or slight changes in the genetic makeup. Hence इसको हमने genetic biodiversity में डाल दिया. ठीक है? क्यों? दिखने में समान है. ठीक है? Only इस particular चीज में variation आती है. तो ये example बच्चा याद रखना important. Now biodiversity conservation एक burning topic है. Very important. नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, either directly or indirectly. मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ल्ड. ठीक है? इन सब का खिचड़ी कर दिया, इसमें डाल दिया. along with it इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस. ठीक है? some parts of biotechnology also, इनको भी ठूस दिया. So the questions which you'll see are either directly related or are a combination. Fine. तो ये चीजें आप ध्यान से देखना and emphasize on this. इसके ऊपर questions बनाना. ठीक है? Now
और एक डाइवर्सिटी देखो जो इंडिया में मिलता है वेरी कॉमन, either you go for mangoes or you go for these, what is this, basically rice varieties, ठीक है, चावल। तो इंडिया इज अ हब टू राइस, चाइना के बाद इंडिया ना सेकंड में आता है राइस में, ठीक है। नाउ देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ राइस अलोन इन इंडिया, देखो ध्यान, 50,000 different strains of rice, 1,000 different varieties of mangoes, ठीक है, इतने सारे varieties of mangoes, you can see सूर्या, केसर, अल्फांसो, नीलम, नीलगोवा, अरुमिया, मल्लिका, चौसा, करंजियो, वनराज, हाइब्रिड्स, ठीक है, मोतीचूर, तोतापुरी, कंचन, आम्बे, ये तो कुछ ही वैरायटीज है, और बहुत सारे हैं। आप देखते हो अभी मार्केट में आखू रसो, बैगन पल्ली, तोता पल्ली, ठीक है, सो मेनी वैरायटीज आर देयर, फाइन, ओके। वैसे राइस की वेरियस वैरायटीज है, आप अगर होलसेलर के पास जाएंगे टू बाई परचेज राइस, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस की, अलग अलग टाइप की, टेक्सचर्स की, वेरियस टाइप्स ऑफ राइस you'll find, फाइन, एंड ऑल दीज कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा नहीं कि हर चीज एक ही जगह मिल जाती है, बट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, ओके, फाइन। तो आपने 3 एग्जांपल्स देखे, वन वाज विद रेफरेंस टू द राउल्फिया वोमिटोरिया, दूसरा दूसरा आपके in terms of the mangoes is, one second, yeah, good morning, class class okay, now look into this, वो आपकी हो गई जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब आओ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ध्यान से देखिए, डाइवर्सिटी किस पे है भाई, स्पीसीज लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, इसीलिए इसे क्या बोला गया, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, यस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन कब आ रही है, स्पीसीज लेवल पे आ रही है, दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमने बोला स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब देखो ध्यान से, नाउ वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज, ठीक है, देन ईस्टर्न घाट्स, क्यों, वेस्टर्न घाट्स रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये विंडवर्ड साइड में है, आपने ज्योग्राफी में स्कूल में पढ़ा होगा, विंडवर्ड साइड, दैट्स व्हाई दे रिसीव अ लॉट ऑफ रेन फ्रॉम द वेस्टर्लीज, ठीक है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है ये मोस्टली बे ऑफ बंगाल साइड में है, ठीक है, एंड इट्स अ लीन पैच, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी है फॉर द एम्फीबियंस ये कम है, बट स्टिल कंपेयर करेंगे तो कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एब्सेंट है, ईस्टर्न रीजन में भी एम्फीबियंस मिलते हैं, वेस्टर्न रीजन में भी एम्फीबियंस आर ऑब्जर्व, लेकिन इफ यू कंपेयर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न टुगेदर तब वेस्टर्न विल बी ग्रेटर देन द ईस्टर्न, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इस लेवल पे क्या होता है, आप जब क्लासिफाई करते हैं तो स्पीसीज के ऊपर आता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम लेवल पे अगर बायोडाइवर्सिटी हो जाए तो उसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। सो द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंप्लाइज डाइवर्सिटी एट द इकोलॉजिकल लेवल, ठीक है ना, फाइन, ओके। तो बेसिकली इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, एस्टुअरीज, ठीक है, अल्पाइन मेडोज, एवरीथिंग, आपने ये टर्म तो सुना होगा ना, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस, हम लोग की जो कंट्री है इट्स अ स्पेशल कंट्री, यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है,
So why do we need, what is the sense of pride in celebrating Independence Day? Why are we special? Because you will not find such kind of biodiversity anywhere on earth. Anywhere on earth. ठीक है, हर प्रकार की वेदर कंडीशन, हर प्रकार की इकोलॉजी आपको यहां मिलती है इन इंडिया. ठीक है. So you'll find desert, you'll find estuaries, you'll find wetlands, you'll find tidal forests. Okay, you'll find dense, midland forest, rain forest. Okay, Himalayan mountains, the highest in the entire world. Okay, so all these things are present. All. So सब कुछ मिलेगा आपको. Fine. As you can see, the Thar deserts. ठीक है. Similarly, the rainforest. Rainforest कहाँ दिखेंगे आपको? नॉर्मली आपको मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर उन जगह पे दिख जाएंगे. ठीक है. मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ दिखेंगे? बे ऑफ बंगाल की सुंदरबंस में मिल जाएंगे. एस्टुअरीज like in our state itself, Chilka is an estuary. ठीक है. It's one of the major estuaries, largest in the entire Asia. उसके बाद कोरल रीफ्स, अंडमान निकोबार रीजन से आएंगे. ठीक है. लक्षद्वीप आइलैंड जाएंगे तो वहां कोरल रीफ्स मिल जाएंगे आपको. Basins and wetlands मिल जाएंगे, that is the backwaters of the Kerala etc. ठीक है. Alpine meadows मिल जाएंगे आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल etc. में. All these are present exclusively in India. ठीक है. इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि a person in his entire lifespan इन सबको डिस्कवर करना भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. फाइन. ओके. So 3 levels of biodiversity आपने देख ली. Okay. One was the genetic, the other became the species, and finally the ecological biodiversity. ठीक है. Is that clear बच्चा? Okay. Then come to the number of species on earth. ये global benchmark है. It has been calculated or estimated, we can see. Why? Because देखो, you cannot exactly count all the species on earth. आप एक एक करके तो गिन नहीं सकते. Why? Because there might be several species or organisms that haven't been discovered yet. क्यों? Because we haven't been able to reach them. अब देखा ही नहीं है तो how would you count them? समझ में आई बात? Still explorations are going on. For example, deep under the sea, we know that the deepest part on earth is the Mariana Trench, Pacific Ocean. ठीक है. जिसमें approximately 1.5 Mount Everest आ जाएगा. 1.5 मतलब 8,848 meters का आपका Mount Everest जो है वो प्लस और आधा Mount Everest भी अगर डालोगे आप तो डूब जाएंगे. समझ में आई बात? तो that's so deep. मतलब imagine approximately 12 to 15 kilometers deep. Okay. And again वहां पे उस डेप्थ तक हम लोग नहीं पहुंच पाए till yet. ठीक है. वहां पे ना लाइट है ना कुछ है, but still that we believe that वहां पे भी इकोसिस्टम होगा. अगर वहां पे भी इकोसिस्टम होगा तो वहां पे कुछ यूनिक टाइप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म रहते होंगे. उनके बारे में हमको कुछ नहीं पता. ठीक है. So therefore this here is simply an estimation. ठीक है. On the basis of certain facts, certain explorations. ठीक है. And sightings वगैरह. ठीक. Okay. Now let's see. IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. फिर से International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Okay. International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, ये basically आपका IUCN है. ठीक है बच्चा. ठीक है.
So according to IUCN 2004, about 1.5 million species described so far. 1.5 million species अभी तक पता है हमें, ठीक है. Then according to Robert May's global estimate, about 7 million species would be there on earth. ठीक है, fine. अच्छा, क्यों? Why is this? हमको पता है 1.5 लाख, I mean 1.5 million, but Robert May says 7 million, so it's 5.5 million more. अब ये कैसे संभव है? Because according to him, जो मैंने आपसे कहा, there might be so many other organisms that we haven't discovered yet. ठीक है, प्लस ये भी समझो कि जब तक आप उन्हें डिस्कवर करेंगे, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि परहैप्स वो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, उनमें से बहुत सारे. ठीक है, देखो, he considered the species to be discovered in the tropics. Only 22% of the total species have been recorded so far. तो सोचिए, हमको बस 22% के आसपास पता है. It is not even 1/4 of the total. ठीक है, अंडरस्टूड. तो अप्रोक्सीमेटली अगर 1/4 को मान के चले, 25% अगर 1.5 है, तो 100% 6 मिलियन होगा अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ओके. These are very interesting things. फाइन, इसे अगर आप देखेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे. ओके, देखो, this is a representation in the form of a pie chart on the biodiversity कि किस organisms की या किन varieties की biodiversity कैसी है. तो उन पे अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि this biodiversity is a very special form of biodiversity. Very special form of biodiversity. देखो ध्यान से, इस ग्राफ में I have tried to display कि कैसे biodiversity होती है और कैसे आपकी इन सब से changes या differences आते हैं. देखो, पहला, animals are more diverse. क्यों? Why? Because basically we know that plants जो है आपके, plants are almost similar. Plants are almost similar. Just a sec. Hello. Oh. ये कोई नहीं. हम क्लास में लोग करा. Okay. Now if you look at it, यहाँ पे देखो एक representation है on the animals. Now as we know, plants जो है आपके, plants are basically having a similar texture, similar organization, and सबको देखने में आपको लगेगा कि सबकी तो सेम ही चीज है, जैसे कि all have the same set of branches, same set of leaves, flowers, fruits, etc. तो इनमें ज्यादा biodiversity नहीं है. But if you look at the animals, so according to the place, according to the location, आप देखेंगे कि बहुत सारे different forms of biodiversity के features मिलेंगे आपको animals में. समझ में आई बात? Now look at it. Animals are more diverse, ठीक है? About 70% more than plants, including plantae and fungi. अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट कैटेगरी है, ये वर्टिब्रेट कैटेगरी है. यस, अब इनवर्टिब्रेट कैटेगरीज में सबसे ज्यादा कौन आ जाता है बच्चा? इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा आपको पता ही होगा, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा बच्चा. आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम having the highest number of organisms or species in them, hence maximum diversity. ठीक है, उसके बाद देखिए मोलस्का, क्रस्टेशियंस. ठीक है, अब इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के साथ आप क्रस्टेशियन मिलाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा. ठीक है, फाइन. ये
प्लस ये मिला लो, इसके साथ में और क्या मिलेगा, अरैक्निड्स, और क्या मिल जाएगा, अरैक्निड्स। ये अब जरा इमेजिन करो, आउट ऑफ द टोटल इनवर्टिब्रेट कैटेगरी ये कितना बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली वर्टिब्रेट कैटेगरी आएंगे, पाइसेस ले लिया आपने, ये दिस इज पाइसेस। पाइसेस को पता है आपको क्या है, एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास, हाँ, सो इट्स सो बिग। अगर प्लांट्स में आएंगे देखो फिर एंजियोस्पर्म्स इतनी बड़ी है, फंजाई सेकंड पे आती है, एल्गी नो आपकी जिम्नोस्पर्म्स, हाँ, आपकी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये बहुत छोटे छोटे। Among animals, insects are most species rich, ठीक है, most species rich. Out of every, ये फिगर याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था इसी साल एग्जाम में भी, that out of 10 animals that you see around you, उसमें से 7 एनिमल इंसेक्ट कैटेगरी के होंगे या आर्थ्रोपॉड्स के होंगे, ठीक है। The number of fungi species is more than the combination total of the species of spices, amphibians, reptiles and mammals. Again, an important fact. मतलब फंजाई कितनी ज्यादा है देखो, ये फंजाई है, ठीक है, फाइन। इनमें आप पाइसेस मिला लो, ठीक है, इनमें आप एम्फीबियंस डाल दो, इनमें आप रेप्टाइल्स डाल दो, इनमें मैमल्स डाल दो, मतलब ये इतना इतना is less than this one. Combined varieties of the amphibians, reptiles, ठीक है, sorry reptiles नहीं डाला मैंने, amphibians, reptiles and pisces along with mammals, fine, इनको अगर मिला लो आप, इनकी पॉपुलेशन जितनी होगी that will be much lesser than that of even the fungi, ठीक है। तो लेकिन इनकी नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, ठीक है, बट इफ यू लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लांट्स। क्यों, वैरायटी ज्यादा है, ऑल्दो द नंबर में बी लेस बट द वैरायटीज आर मोर, ठीक है। हाउ देन कम टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, देखो ध्यान से, देयर आर सो मेनी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स इन इंडिया, ठीक है। इनमें से बहुत सारे तो आप ऑलरेडी ट्रैवल भी किए होंगे, तो ध्यान दो इसमें। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, जितनी बायोडाइवर्सिटी हमारी है वो अप्रोक्सीमेटली ओनली 2.4% है, ठीक है। किंतु उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी जो है ऑक्यूपाइंग ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, उसमें आपको 8.1 की बायोडाइवर्सिटी मिल जाती है। लैंड मास ऑक्यूपाइड बाय देम इज ओनली 2.4%। तो स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है वो जरा सोचो, ठीक है, हाउ रिच इट इज इन डेंसिटी। सो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, ठीक है। जैसे इन पर्टिकुलर कंट्रीज की लिस्ट अगर आप देखें, तो ऊपर में आपको मेक्सिको, पैराग्वे, यूरुग्वे, जो कि आपकी बेसिकली अमेज़ोनियन फॉरेस्ट में आते हैं, some parts of it. So that's the reason why you'll have so much biodiversity in those areas. ठीक है, तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में ब्राजील, ठीक है, ये सब चीज कंट्रीज आते हैं, उसमें इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8th या 9th पोजीशन पे आती है, ओके। Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals. 45,000 species of plants है और approximately 90,000 species of animals are found only in India, ठीक है। Applying May's global estimates, India would have more than 1 lakh plant species and 3 lakh animal species. समझ में आया? अगर मे रॉबर्ट मे, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि 7 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली, हम ये जो 48,000 एंड 90,000 कर रहे हैं वो 1.5 मिलियन के आसपास कर रहे हैं,
बट ये जो बोल रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन को लेकर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, रॉबर्ट मेज डेटा इज नॉट एक्चुअली कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड, तो वो एक एस्टिमेट है, तो इट मे और मे नॉट बी एग्जैक्टली एप्लीकेबल, दैट डिपेंड्स, बट स्टिल देन some part of it might be true. Okay, then total number of species on earth, global species diversity कैसे देखते हैं? Biologists are not sure about the total number of prokaryotic मतलब मोनेरा, इसमें क्या आते हैं बच्चा? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये आ जाते हैं इन दी मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोट, ठीक है। No, conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. क्यों? Because in ये since these are microscopic in nature, तो बहुत छोटे हैं साइज में. If they are so small in size, they are very difficult for us to actually imagine, to actually observe. ठीक है. And even उनकी जो क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उनको वन बाय वन सॉर्ट आउट करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, इन लैबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड. व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ, जो कि उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही पॉसिबल है, and to provide those habitat in artificial methods is not so easy, hence difficult to culture, ठीक है। और जब तक आप कल्चर नहीं करते हो तो you cannot understand the features of these microbes, hence difficult, ठीक है। तो यहां तक हमने levels of biodiversity, then various types of biodiversity, distribution or the spread of biodiversity देखी, ठीक है। From here onwards we'll go into the various patterns of biodiversity. ये biodiversity की patterns कैसी है, ठीक है। Let's see. Now, ये जो चीज आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी, ये अर्थ है ना। अर्थ बेसिकली इज अ जियोइड स्ट्रक्चर एंड ये जो है इसकी एक्सिस है, ठीक है। दिस इज इट्स एक्सिस. This axis is basically tilted. ये axis tilted है and इसकी tilt जो है, inclination जो है, वो approximately 66.5 डिग्री सेल्सियस पे है. I mean, सेल्सियस बोल रहा हूं मैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। So if this is considered a plane, तो ये जो आपकी इंक्लिनेशन है, ये आपकी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ले लो, ये जो एंगल बन रहा है आपका, फाइन, इट इज 66.5 डिग्री. ओके, समझ में आई बात? ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या बनाते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, स्कूल में पढ़ा होगा आपने. नाउ लैटिट्यूड्स आर द वंस दैट रन पैरेलल डिवाइडिंग द अर्थ इनटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, नॉर्मली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एंड दूसरी है लॉन्गिट्यूड, जो कि ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करती है, पासिंग थ्रू द सेंटर्स, ठीक है, एंड दे डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल हाउस, ठीक है। ये डिफरेंट हाउस में, वो इक्वल हाउस में, ठीक है. नाउ इफ यू कंपेयर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, then the latitudes will have more contribution than the longitudes. क्यों? Because latitudes basically जो है ये अर्थ को डिफरेंट हेमिस्फीयर्स में तोड़ते हैं. दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. तो लैटिट्यूड्स की वजह से देयर इज मोर बायोडाइवर्सिटी देन कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूड्स. देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड सेवरल लैटिट्यूड्स हियर. देखो जैसे यहाँ बीच में सेंटर पे दिस इज 0 डिग्री, इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है. ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर.
दैट इज इक्वेटर ने, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड ने आपकी एंटायर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में तोड़ दिया, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ठीक है, दैट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। उसके बाद ये जो आर्कटिक सर्कल आ गया, ये 66.5 डिग्रीज नॉर्थ हो गया। फिर नीचे आएंगे ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, फिर उसके नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल आ गया, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स व्हिच यू विल सी बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड्स। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट कैसी है लैटिट्यूड के कंपैरिजन में? एज वी मूव, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस from the equator to the poles. As we move from the equator to the poles, species diversity घटती है। क्यों घटती है? Because of the changes in the weather conditions. Weather conditions वगैरह में changes की वजह से, ठीक है। तो जब changes बहुत ज्यादा होंगे तो adaptations करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। So those organisms who can adapt to those changing environments, they would survive. The others who cannot, they would die or migrate. Hence, आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं पोल्स की तरफ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ या नीचे आते हैं साउथ पोल की तरफ, the climatic conditions change. Hence, diversity decreases. जबकि इक्वेटर एंड दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बेल्ट है आपकी, उसमें ऑलमोस्ट एंटायर ईयर सिमिलर वैरायटीज ऑफ वेदर कंडीशंस दिखती हैं एंड चेंजेस बहुत कम ही होते हैं। हेंस यहाँ पे the organisms can flourish, तो biodiversity बहुत ज्यादा है, ठीक है। So tropics, that is latitude 23.5 degree north to south, have more species than temperate or polar areas. समझ में आई बात? That's the reason. क्यों? Because changes बहुत minimal होते हैं। जब ये अर्थ रोटेट करता है about its axis or when it revolves around the sun, तो the one part of this particular region is always facing the sun and it receives equal amounts of sunlight, solar radiation. तो टेम्परेचर फिक्स रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फिक्स रहती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ये लोग आपका सेम अमाउंट ऑफ वेदर कंडीशन की वजह से प्रॉपरली ग्रो कर पाते, ठीक है। सो दे डू नॉट रिक्वायर टू अडैप्ट सो फ्रीक्वेंटली बिकॉज द चेंजेस आर वेरी वेरी माइनर इन नेचर, ठीक है। नाउ ध्यान दो, एग्जाम्पल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा बच्चा। सबसे पहला देखिए नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो बर्ड स्पीसीज अगर आप ध्यान देखो दोगे तो क्या दिखेगा आपको? देखो कोलंबिया इक्वेटर के पास है, हेंस 14,000 स्पीसीज है। इंडिया ट्रॉपिक्स में है तो 12,000 स्पीसीज। न्यूयॉर्क देखो, ठीक है, सिंस इट इज टूवर्ड्स द पोल्स तो आपकी टेम्परेट एंड दी जोन में आ जाता है ये, तो 105 स्पीसीज। ग्रीनलैंड पूरा क्लोज टू इक्वेटर पहुंच जाता है, ठीक है, उस सर्कल में आ जाता है आर्कटिक सर्कल में, तो इसलिए और कम स्पीसीज हो गए 56 स्पीसीज। नाउ यू कैन सी द डिफरेंसेस, इक्वेटर, नियर इक्वेटर, away from equator, close to pole. So as we move from equator towards the poles, the diversity goes on decreasing. ठीक है ना बच्चा, याद रखिएगा। ओके, ये कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। So tropical forest regions like Ecuador has up to 10 times of vascular plants species as compared to a temperate forest region like Midwest of USA. तो इक्वेडोर में आपको ढेर सारी वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज दिखेंगी, जबकि मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में बहुत कम दिखेंगे, ठीक है। वाई? सेम चीज, लैटिट्यूडल डिफरेंसेस, ओके।
लुक एट द ग्रेडियंट्स जो अभी आपको दिखा रहे थे इन टर्म्स ऑफ नो द राइटिंग, वही चीज आपको दिखा रहे इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल मैप। देखिए ये आपकी लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिकन रीजन, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन रीजन है। तो ये देखो आप, कोलंबिया, अमेजोनियन फॉरेस्ट, ठीक है, देन द इक्वाडोर सेक्शंस, फाइन। उसके बाद ये देखो गैलापागोस आइलैंड्स, फाइन, पेरू। तो ये सब रीजन्स आपकी क्लोज क्यों है यहाँ पे, आप अगर ध्यान दोगे, इफ यू लुक एट इट, ये आपकी ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल बेल्ट के पास ही आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। Oh, tropical forest regions like Ecuador has up to 10 times of vascular plant species as compared to a forest region present in the USA. Now, plants ज़्यादा हो सकते हैं maybe, animals ज़्यादा हो सकते हैं maybe, लेकिन diversity कम होती है ना. Do not confuse between the number of plants, number of animals with the diversity. Number is a count कि इतनी टोटल एनिमल्स हैं या इतने टोटल प्लांट्स हैं। लेकिन जब आप डाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी मतलब टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो दो अलग चीजें, ध्यान दीजिए। लैटिट्यूडल ग्रेडियंट्स में ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है, फाइन। उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज अमेजोनियन फॉरेस्ट में कैसे मिलते हैं, ध्यान दीजिए। दिस इज अ डेटा व्हिच इज आल्सो वेरी क्वाइट क्रूशियल, कि अगर आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे विद डिफरेंट पार्ट्स आई मीन ऑफ द अर्थ, तो आप पाएंगे कि अमेजोनियन फॉरेस्ट आर हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। 40,000 के ऊपर प्लांट्स है, 3,000 species of fish, 1,300 species of birds, 427 species of mammals, 427 amphibians, 378 reptiles and insects etc. जो invertebrate categories है वो तो greater than 1.25 lakhs है, ठीक है। So ये just imagine कि what kind of, अकेले Amazon में ही इतनी diversity आ गई, literally everything is found। आपको इन्वर्टिब्रेट्स दैट इज दी इंसेक्ट्स, मॉलस्क वगैरह सब मिल जाएंगे। फिर आपको रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, फिश मिल जाएंगी, एम्फीबियंस मिल जाएंगे, मैमल्स मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, प्लांट्स तो है ही, ठीक है। सो दो मनी बायोडाइवर्सिटी फीचर्स यू विल फाइंड देम, ठीक है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें से आराम से ढेर सारे क्वेश्चंस बना सकेंगे, ठीक है। नाउ लुक इनटू दिस reasons for higher biodiversity or species richness in the tropics क्यों है। as I was just mentioning कि as the earth would revolve around the sun, तो ये जो position है and इसकी जो tilt है उसकी वजह से this part which is the tropical section of the earth, because of the 0 degree latitude and the 23.5 degree north and 23.5 degree south latitude, ये रीजन को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सोलर रेडिएशन मिलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो साल भर उनका ना वेरिएशन बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको फ्लरिश करने का बहुत चांस मिलता है, ठीक है ना। एज यू कैन सी यहाँ पे इक्वेटोरियल सेक्शन में डायरेक्ट रेज आ जाते हैं, वेराज इस रीजन में आपको स्लाइट चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, आर्कटिक जोन, अंटार्कटिक जोन, ये रीजन्स अलग अलग अमाउंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इनमें डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस आती है, ध्यान दो। When you look at the reasons for biodiversity, पहला आपका species richness हो गया, ठीक है। Tropics had more evolutionary time, क्यों? Why? Because the tropics have received the same amount of sunlight, one, plus because of the tilt and the rotation of the earth, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है मिलके
इसको ज्यादा इफेक्टिव इवोल्यूशन करवाती है। उसके बाद रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स लेस सीजनल मतलब सीजनल चेंजेस बहुत वेरी वेरी लेस है। Then receive more solar energy which contributes to the greater productivity. तो solar radiation आपकी जो photosynthetically active radiation PAR है, उसके हिसाब से ये लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को मिलता है, तो इसके हिसाब से फोटोसिंथेसाइज भी अच्छे से करते हैं, बायोमास की डेवलपमेंट होती है एंड हेंस ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे बनते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों ही इनके बहुत ज्यादा है, जीपीपी एज वेल एज एनपीपी। नाउ लुक इनटू दिस, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसकी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये कैसे आते ध्यान दीजिए। Van Humboldt, he was a person who actually mathematically represented the species biodiversity in an equation जिसको हम बोलते हैं species area relationship. Now इनके हिसाब से क्या था concept कि as you increase the area, then the biodiversity of species richness also goes on increasing. मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा एरिया कवर करते हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलते जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर ह्यूमबोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन ह्यूमबोल्ट इन साउथ अमेरिका, ठीक है, within a region species richness increases with increasing explored area but only up to a limit। क्यों? अरे देख, सिंपल सी बात है, आप जैसे जैसे आपकी एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीसीज की काउंट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। बट दैट बायोडाइवर्सिटी विल बी फिक्स्ड आफ्टर सम टाइम। व्हाई? बिकॉज एक सर्टेन लोकेलिटी में या रीजन में एक ही प्रकार की वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखेंगी, ठीक है। तो इन दैट रीजन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके उस पर्टिकुलर वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव एंड फ्लरिश कर सकते हैं, अडेप्टेड है, दे विल बी देयर। So once you have seen all of them, even if you increase this area, तो इनकी वैल्यू में या इनकी स्पीसीज काउंट में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। So that's why it will increase, correct, but up to a certain limit, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसा था, let's see. According to him, just observe this particular thing. According to him, Alexander von Humboldt, उन्होंने जो आपको ये इक्वेशन दिया, that is S is equal to CA to the power Z. S is equal to CA to the power Z, ठीक है। अभी S क्या है, C क्या है, A क्या है, Z क्या है, let us see that, ठीक है। S is equal to CA to the power Z है, ये इक्वेशन है। इसका एक ग्राफ भी है, as you can see and to your left, जो ग्राफ है बेसिकली अगर आप देखेंगे दो प्रकार की ग्राफ है भाई, एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है, एक आपकी पैराबोला है, ठीक है ना। एक लीनियर रिलेशनशिप वाला ग्राफ है, दूसरी पैराबोला है। अब दोनों है क्या, कैसे बनती है, लेट अस लुक एट दैट, ओके, ठीक है। ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो S है, the S which you see here is species richness, C जो है Y इंटरसेप्ट, A जो है
एरिया है, ठीक है। S is species richness, C is y intercept, A is area, ठीक है। एंड जो Z दिख रहा है आपको वो स्लोप ऑफ द लाइन है, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब लोग ने मैथ्स तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो कैसा बनता है देखिए, S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z, ये एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने पावर लिया हुआ है Z, ठीक है। अब दैट इज द रीजन व्हेन Z इज बेसिकली अ डिग्री अ पावर, तो आप इसे एक्सप्रेस जब करते हो तो इसकी ग्राफ जो है पैराबोला फॉर्म करती है। बट सपोज आई गो फॉर अ लॉजिस्टिक कर्व, तो दोनों साइड में हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ S इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी ए टू द पावर Z। अब लॉगरिथमिक जो रूल्स है, ठीक है, आपको याद होंगी, वंस यू हैव टेकन अ लॉगरिथमिक रूल हियर, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चा, दिस विल बिकम लॉग ऑफ C, ठीक है, लॉग ऑफ C बाई प्लस log of A to the power Z, that is equal to log of C plus Z log A, ठीक है। तो log S is equal to log C plus Z log A, ये आपकी बेसिकली from exponential component we have converted into a logistic curve और a linear curve, ठीक है, फाइन। वही चीज है देखो, on a logarithmic scale the relationship is a straight line, equation is log S is equal to log C plus Z log A। ना अगर आपको याद होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत, तो ये जो फॉर्म आया ये किस फॉर्म में आया, y is equal to mx, y is equal to mx plus c फॉर्मेट में आया, that we also known as the slope intercept form, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या है बच्चा देखो, ये m जो बनता है आपका ये स्लोप है, एंड c जो है आपकी वो क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, बिकॉज द इक्वेशन इज ऑन द x एक्सिस, तो यहाँ पे आपकी ये c जो बनती है वो y इंटरसेप्ट होगी, ठीक है। तो वही चीज है, अब देखो इसको इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया आपका mx, ये हो गई c, ठीक है, दैट इज z log a, एंड ये आपकी log c हो गई, तो z इज इक्वल टू द स्लोप, ध्यान दीजिए स्लोप, z इज द स्लोप, ठीक है, फाइन। और c जो है क्या हो गया बच्चा, y इंटरसेप्ट है इधर, है ना, क्लियर। तो इस प्रकार से आपकी ये रिलेशनशिप बन गई। सो द ग्राफ विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज एन एक्सपोनेंशियल स्केल, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। एंड व्हेन यू लुक एट दी लीनियर रिलेशनशिप और लॉजिस्टिक कर्व, तो लॉजिस्टिक स्केल पे ये कर्व जो आती है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आती है, दैट वी कैन एक्सप्रेस इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, समझ में आएगा, इज दैट अंडरस्टूड, ओके, ठीक है ना। ये हो गई बेसिकली अलेक्जेंडर वॉन ह्यूम्बोल्ट का इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पे थोड़ा ध्यान दे दो, कुछ इनकी स्टिपुलेटेड वैल्यूज भी है, लेट अस मार्क देम आउट। जनरली फॉर स्मॉल एरियाज Z की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 की बीच में रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन अगर आपने एरिया बढ़ा दिया फॉर लार्जर एरियाज, ठीक है, लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा, तो ये जो z की वैल्यू है वो 0.6 से 1.2 तक आ जाती है, 0.6 से 1.2 तक आ जाती है, ठीक है। तो फ्रूजीवोरस बर्ड्स हो गया एंड मैमल्स हो गया इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द z वैल्यू कैन बी एज मच एज 1.15। क्यों? इनमें आपकी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखती है। एंड जो जगह आपने ले लिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले लिया, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ है? थ्रू आउट द वर्ल्ड है। सो व्हेन द एरिया इज सो बिग, द स्लोप इज आल्सो बिग इनफ। समझ में आया? इन जनरल आपको 0.1 से 0.2 तक रहता है फॉर स्मॉल एरियाज, फॉर लार्जर एरियाज इट कैन बी 0.6 टू 1.2, ठीक है, फाइन। एंड इन केस ऑफ फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, ये ट्रॉपिक्स में इनकी वैल्यू जो है 1.15 है। तो z इज वैल्यूज, रिमेंबर इट, ठीक है। ना उसके आगे बढ़ो बच्चा। Now, what is the importance of this species diversity? ये क्यों valuable? ठीक है, there's a scientist, no, David Tillman है इनका नाम, ठीक है, philanthropist as well as research scientist है। तो क्या है देखो, according to David Tillman, plots with more species show less year-to-year variation total biomass। मतलब सिंपल भाषा में बोले, areas with greater biodiversity of species are comparatively more stable and less prone to disasters। समझ में आया? मतलब जिन जगह पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, उनमें थ्रेट लेवल भी कम होता है और बैलेंस मेंटेन होकर रहता है। व्हाई? बिकॉज फूड चेन, फूड वेब बन जाता है। समझ में आई बात? तो व्हेन देयर आर इंटरकनेक्टेड स्पीसीज सर्वाइविंग इन अ कॉमन हैबिटेट, तो उनके बीच में डिपेंडेंसी वगैरह होती है, इंटरलिंक होता है। तो द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्रोवाइड्स देम स्टेबिलिटी। समझ में आया? So species richness is an indicator of a stable ecosystem also, or biodiversity also। देखो कैसे। Now, according to David Tillman, plots with more species show less year-to-year changes in their biomass। और ठीक है, productivity। क्यों? इनमें constant increase and decrease है। Then there are so many different contributors to this। तो ये जो contribute करते हैं, तो इनकी contribution की वजह से there are very 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 minor fluctuations present। तो जब fluctuations बहुत कम होते हैं, तो stability maintain होके रहती है, productivity भी एक constant rate में इधर increase होती है या stable रहती है। Fine। So increased diversity contributes to higher productivity. So species richness, that is S, is an indicator of higher productivity. The areas that have a greater value of S are comparatively more stable and provide higher productivity. ठीक है, it is essential for ecosystem health and survival of human race that the species richness is maintained or sustainably maintained। ठीक है, understood? Very important relationship, याद रखिएगा बच्चा। उसके बाद देखो रे बच्चा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ना ये रॉबर्ट टिलमैन की जो कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, पॉल एलरिच, ठीक है, he also gave the same concept in terms of Ribet-Popper hypothesis। अब ये Ribet-Popper hypothesis क्या था? ये देव आपकी पॉल एलरिच ने एक कंपैरिजन किया। He compared the biodiversity of a region with that of an aeroplane, where aeroplane is that particular ecosystem
एंड उसमें ये जो पैसेंजर्स वगैरह है, रीजन्स वगैरह है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, प्लस the various components of that particular ecosystem like the wings हो गए, wheels हो गए, fans हो गए, blades हो गए, ठीक है, cockpit हो गया, all these things, ये सब propellers हो गए, ये सब इनकी components है किसकी, उस particular ecosystem की, ठीक है। देखो, it's an analogy used to understand the importance of biodiversity, ठीक है। किसने दिया, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने दिया, ठीक है। फाइन, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वन। अकॉर्डिंग टू हिम, इन एन एयरप्लेन, इन एन एयरप्लेन और एरोप्लेन, जो कंपेरेबल किसके साथ है रे, सी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ना, लगता बहुत सिंपल है बट एक्चुअली इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। एंड इनमें से जब क्वेश्चंस आती है तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, तो whenever you find time तो इस पे ध्यान से एक बार देखो, पढ़ो, क्यों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिवेट पॉपर इज वेरी क्रूशियल। हमको लगता है हमको समझ में आ गया, बट एक्चुअली में जब आप करने बैठते हो क्वेश्चंस वगैरह, देन यू फाइंड क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जब आप उनको एप्रीहेंड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर प्लीज फोकस हियर। इन एन एयरप्लेन, कंपेरेबल किसके साथ है बच्चा, इकोसिस्टम के साथ। All parts are joined together using many rivets or species. In an airplane or ecosystem, all parts are joined, ठीक है, together using many rivets or species. Fine, fine. तो एरोप्लेन हो गया इकोसिस्टम, एंड वेरियस जो पार्ट्स है उसके, इसके एरोप्लेन के, they are comparable to the components, that is rivets or species, ठीक है। If passengers pop a rivet, मतलब passengers pop a rivet मतलब if they cause a damage to that particular species or component, ठीक है। मान लीजिए एरोप्लेन का कोई भी पार्ट है, all parts are comparable to various kinds of species. Suppose, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, suppose a wheel of it is actually damaged, ठीक है। तो थ्रेट लेवल जितना ज्यादा होगा, इफ यू कंपेयर टू दैट ऑफ अ विंग और अ प्रोपेलर, ठीक है। इफ द प्रोपेलर इज डैमेज्ड, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द डैमेज, ये डैमेज सर्वाइवेबल होगा, it will cause threat, yes, true, but the threat would be not very grave in nature. But मान लीजिए a problem occurs in the propeller or in the wings, then it will be a great problem or threat to this particular ecosystem. So in order to understand the degree of threat that eradication of a species or damage to a component may come into the light, either in short term or long term, we refer to it as rivet popper hypothesis, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, पैसेंजर्स पॉपर रिवेट मतलब मान लीजिए कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। नाउ दैट स्पीसीज formed a component of that particular ecosystem, either in the food chain or in the food web. If it has been removed from that place, तो उसकी जगह पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो फाइन, otherwise what will happen, that will cause a serious problem. Now that serious problem could be threatening to the eradication of the entire ecosystem, yes, correct, over the short term, matlab in a very small span of time, or after a certain longer period, ठीक है। And within that longer period there might be time for you to adjust and another species can take its place, so the damage would not that would not be like fatal for that ecosystem, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, अगर मान लीजिए कोई भी छोटी सी स्पीसीज रिवेट हो गई, बाहर हो गई, तो वो आपकी फ्लाइट को सेफ्टी दैट विल नॉट बी अफेक्टेड, यस, जैसे अभी आपको बोला मैं,
ये डैमेज हो गया, ठीक है, बट ये कंप्लीट इंटीग्रिटी ऑफ दिस एंटायर प्लेन को डैमेज नहीं करती, ठीक है. So functioning of the ecosystem will not be harmed in a very, very big way. It will survive. ठीक है. But as more and more rivets are removed, मान लीजिए अभी पहले ये गया था आपका व्हील, फिर उसके बाद चला गया मान लो ब्लेड्स, प्रोपेलर्स, तो धीरे धीरे करके एवरीथिंग वंस starts to go, then the entire plane is no longer safe and would become dangerously fatal for the entire species or for the entire ecosystem. Everything will be lost. ठीक है, फाइन, ओके. उसके बाद देख लो, come to the last part here. लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, जो कि की स्पीसीज है, अभी आपको बोल रहा था. कुछ स्पीसीज मान लो अगर एक्सटिंक्ट हो भी गए, still there is a possibility that it will survive. But if the loss is fatal or big, like the key component, जैसे wings हो गए, propeller हो गया, then the entire ecosystem will crash. इनको क्या बोलते हैं? की स्पीसीज. ठीक है, क्या है ये? the wings or the rivets that drive major ecosystem, fine, and its functions, if they are lost, then it will be of grave threat to that entire ecosystem. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो ध्यान से. Loss of rivets on the wings of key species that drive major ecosystem functions is more dangerous to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. क्यों? ये छोटे छोटे को मान लो कोई सीट खराब हो गई है, suppose my some window is damaged, that will not cause a threat to the entire ecosystem or the aeroplane which is compared. But मान लीजिए प्लेन का रेडार खराब हो गया या विंग्स खराब हो गए या फिर आपकी प्रोपेलर खराब हो गई, द एंटायर प्लेन वुड क्रैश, इकोसिस्टम वुड बी गॉन. समझ में आई बात? चलो बच्चा, ठीक है, आज का अध्याय यही खत्म करते हैं. दिस पार्ट बायोडाइवर्सिटी इज डन. चलो, थैंक यू वेरी मच. ओके, फाइन, we'll see it in the next class. Chalo, bye.